अहमद रजा भाई का सबसे फेवरेट टॉपिक है अब, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अन्नूर प्रोफेशनल फोरम, द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारा जनरल डिस्कशन हो गया। आई होप कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ लर्निंग टिप्स भी आपको मिली होगी और आपने नियत भी की होगी आप उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, देखिए आप लोगों ने बहुत सारी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना होगा जो कि हमारी इंडस्ट्री को इफेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। उसमें से उन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का इम्पैक्ट फाइनेंस के फंक्शन पर भी आ गया है। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट ऑल यू टू प्लीज स्टैंड अप। थोड़ी सी स्ट्रेच ब्रेक कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं बैठ बैठ के, क्योंकि अब थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेच ब्रेक करें, स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें, बैठ जाएं। गुड। देखिए इंडस्ट्री 4.0, व्हाट इज 4.0? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जवाद आप इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या होता है ये? हम बताएं। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? जब हमारे पास फैक्ट्रीज, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स ये सेट हुए थे, तो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो कुछ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसने हमें इम्पैक्ट करना शुरू किया और फाइनेंस के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा मुतासर करना शुरू कर दिया है, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी कुछ कुछ। उसको देख लेते हैं वो कौन सी है। तो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, robotic process automations and data science. How many of you are aware of these terminologies? Raise your hand. बहुत कम लोग हैं जो इससे वाकिफ हैं कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं कि जो कि डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रही हैं। हमें 10 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट करना है।
Digital transformation opens the door for many opportunities within finance. Today, finance is asked to essentially set the course for the years to come. Let's take a closer look at two possible scenarios for the future. We're in the year 2022. Finance as a division has significantly shrunk. In many areas, standardization and automation have taken place. Many processes have been automized efficiently through robotics. Finance consists of a small team of specialists for topics like IFRS, taxes, risk management, compliance, regulation, and financing mechanisms. Processing of financial statements is now fully automated. The operational responsibility for the closing process is now owned by IT. Business decisions are primarily taken based on information derived from operational functions. Marketing and sales, as well as technology, invested early in big data and analytics and are now jointly leading the Center for Analytics. Finance has lost its leading role and is no longer involved in important decision-making. Instead, it focuses on contributing special expertise where needed. The responsibility of planning and forecasting has shifted completely towards operations. Early on, they set up big data-based prediction models within their divisions. The role of finance is limited to planning of financial mechanisms, taxes, as well as currency and consolidation effects. Finance has become a mere center of excellence that is limited to providing highly specialized financial expertise upon request. 2017. Finance missed the opportunity to claim and shape new digital trends and actively build a future vision for themselves. Finance was overrun by digitalization and lost its role of being part of the strategic development of the entire organization. 2017. Finance decided to become a leading pioneer of digitalization. Finance analyzed digital trends for themselves and developed a target and vision for the future. The goal was to act, not react, and develop a common vision. Upon this foundation, new opportunities were identified, and as a result, a newly formed roadmap has been developed to define specific actions for the years to come. An interdisciplinary team coordinates analytical topics and combines deep business competence with technical know-how. Finance was the driver for building the Center for Analytics. Information from various sources are combined in real time. The planning and forecasting process has been automated to the highest degree possible, with modern statistical methods and big data. The forecast preparation is done by a push of a button, and finance is able to focus on the development of new insights. From day one, all finance executives have been involved in the development of the target vision. Finance now combines strategic competence with in-depth business know-how. New skills in the area of data modeling and analytics have been built up and used successfully. Finance focuses on cross-functional and interdisciplinary cooperation. 2022. Standard processes have been fully automated. Finance has gained time and capacity to consider and work with analytical-related questions. Finance is the co-pilot in the context of strategic development and appreciated as a business partner for operational functions. Now, it's time to define your future in the digital world. थोड़ा सा इसको देखते हैं. According to PwC, these are the 8 essentials. These are the 8 essentials. जी बताइए. सब बिल्कुल डेफिनेटली फायदेमंद है. डेफिनेटली फायदेमंद है. बहुत सारी फाइनेंस के फंक्शन सेल्फ सर्विस हो जाएंगे.
और वो PwC के मुताबिक ये 8 एसेंशियल्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी एंड 3D प्रिंटिंग। अच्छा, विच टेक्नोलॉजीज विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस? नियर टर्म में, मिड टर्म में और लॉन्ग टर्म में? अकॉर्डिंग टू PwC, नियर टर्म में RPS का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, फिर इसके बाद बेसिक AI और फिर देन ये ब्लॉकचेन। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो इम्पैक्ट है वो RPS का कम होता रहेगा और ये बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड AI और डेटा साइंसेस, इसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा 3 से 5 सालों में अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, और ये ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पे भी हम बात करते हैं। मैकेंजी इज द लीडिंग ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म। अकॉर्डिंग टू मैकेंजी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। इनमें से कौन से फंक्शंस हैं कि जो कि फुल्ली ऑटोमेबल है या हाईली ऑटोमेबल है या डिफिकल्ट टू ऑटोमेट है? तो ये तमाम फंक्शंस जो कि ब्लू से मार्क हुए हुए हैं, यहाँ पर ये तमाम फंक्शंस जो कि ब्लू से मार्क हुए हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑटोमेट हो सकते हैं और ये हो भी रहे हैं। और ये जो सारे फंक्शंस हैं जो कि नीचे आ रहे हैं, इनमें ऑटोमेशन का की स्पीड और पेस स्लो है। तो ये आप देख सकते हैं कौन से फंक्शंस फाइनेंस के ऑटोमेट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। ये अपने मैकेंजी की रिसर्च से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ। अच्छा, ये भी आप देख लें, मैकेंजी के मुताबिक ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि फाइनेंस की ऑटोमेट हो जाएंगी बहुत जल्द। इनको एक नज़र देख लें, फिर आप मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इसमें इसको एक नज़र ज़रा देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन। आई एम गिविंग जस्ट अ जेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉकचेन, AI and robotic process automations and data sciences. What is blockchain? Blockchain क्यों आया? Blockchain basically इसकी जो इन्वेंशन है ना वो 2009 में हुई है, जब सतोशी नाकामोटो, जो कि एक मिस्ट्री है, एक अनडिस्क्लोज्ड आदमी या कोई ग्रुप या कोई मुल्क है कि जिसने डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट पेपर पब्लिश किया वेब पर ओपन, और उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करने में ही बेहतरी थी, क्योंकि उसने जिससे पंगा लिया था, जिसने उससे कॉम्पीट किया था, वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, और वो डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आया और उसने अपना नाम जो है वो सतोशी नाकामोटो डिक्लेयर किया। ये ऐसा कोई बंदा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि ये जापान से इमर्ज हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि जो अंग्रेजी लिखी गई है इस पेपर के अंदर वो इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि ये यूके का बंदा मालूम होता है। तो आप वो देख लीजिएगा पूरा पेपर, उसके अंदर बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये जो ना बिटकॉइन का जो कॉन्सेप्ट है ये आया था अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अगेंस्ट सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ठीक है, हम सेंट्रल बैंक के ऊपर अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि हम सेंट्रल बैंक के ऊपर या बैंक्स के ऊपर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं, हमारी सारी ट्रांजैक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो कि ट्रस्टलेस सिस्टम है, जिसमें पीयर टू पीयर, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने फ्यूचर सेमिनार्स में। ब्लॉकचेन इज अ पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड distributed ledger that permanently and chronologically records and guarantees an immutable, unalterable, trustworthy transactions of money and valuable assets in a trustless environment through consensus protocol secured by cryptography with economically incentivized participation. ये डेफिनेशन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये ज़ीशान उस्मानी की डेफिनेशन है, डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी की। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है ब्लॉकचेन की, ये एक डेफिनेशन है और इसमें सारा ब्लॉकचेन समझा दिया गया है कि ब्लॉकचेन जो है ना वो एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर लेजर है, जिसमें ट्रांजैक्शन एक दफ़ा लिखी जाती है तो वो परमानेंटली उसके अंदर लिखी जाती है, वो ऑल्टर नहीं हो सकती है। जैसा इस तरह से कि मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, आप सब लोगों के पास एक एक पीस ऑफ पेपर है, और मैं अपने पीस ऑफ पेपर पर अगर कुछ लिखता हूँ तो वो सारी लिखाई आप सबके पीस ऑफ पेपर में रेप्लिकेट हो जाती है, और एक दफ़ा जब लिख दिया तो वो इम्यूटेबल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता।
वो कैसे चेंज, अब यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्यों चेंज नहीं कर सकता? उसके अंदर एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम के थ्रू हैशिंग होती है कि जो इसको इम्यूटेबल बनाते हैं। कैसे हैशिंग होती है, मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा ब्लॉकचेन है, एवरी सीट इज अ ब्लॉक। ये पहला ब्लॉक है, इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन लिखी गई, मनी, एसेट्स या कोई भी चीज़ की वैल्यू, वो हम एसेट्स की डेफिनेशन बाद में देखेंगे अपने आगे वाले सेमिनार में। किसने एसेट ट्रांसफर किया किसको, किस वक्त, आसान अल्फाज में ये इस ब्लॉक के अंदर मैंने लिख दिया। ये इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हैश हो गई और इसका एक क्रिप्टोग्राफिक कोड जनरेट हो गया। ठीक है, ये वन वे कोडिंग है। अगर इस कोड को डीकोड करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। ये आ गया एक है ना क्रिप्टोग्राफिक कोड, और इस ब्लॉक का एक हैश है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन कोड हुई हुई है। अब ये दूसरा ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक में भी ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी और ये सारी इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्राफिक हैश में कन्वर्ट होगी, और वो जो हैश है ना वो पिछले वाले ब्लॉक के हैश के साथ मिलके दोबारा कोडिंग करके एक और हैश क्रिएट होगा, और वो हैश जो निकल के आएगा वो अब इस ब्लॉक का हैश है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक से कनेक्ट हो गया, दो हैशेस आपस में मिले और एक और हैश क्रिएट हो गया। ये तीसरा ब्लॉक, यहां पर वो इंफॉर्मेशन लिखी गई, वो इंफॉर्मेशन क्रिप्टोग्राफिक हैश में कन्वर्ट हुई। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कि किसने क्या ट्रांसफर किया, और इसका एक हैश बना, और वो हैश पिछले वाले ब्लॉक के हैश के साथ कोड हुआ और एक और हैश आ गया। तो जो पिछले वाला ब्लॉक का जो हैश था उसमें इस ब्लॉक का भी हैश था। अब अगर आप ये सारा इस तरह से चेन बनती गई, अगर आपने बीच वाले ब्लॉक के अंदर कोई ऑल्टरेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा, और जब तक आप यहां पर आएंगे 10 मिलियन और ब्लॉक्स बन चुके होंगे और वो सारे आगे के साथ क्रिप्टोग्राफिक हैश के साथ एक ब्लॉकचेन बन जाएंगे। ये ट्रांजैक्शन इम्यूटेबल हो गई है और ये परमानेंट रिकॉर्ड है, अब ये चेंज नहीं होता। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अगले सेमिनार में। ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ट्रस्ट इंसान का एक ना ट्रस्ट है, बेसिकली वो शेक हो रहा है। 2008 के अंदर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जब बैंकिंग का निज़ाम कोलैप्स किया तो हमें एक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत थी कि अब हम सेंट्रल अथॉरिटी पे रिलाई नहीं करेंगे, अपना खुद निज़ाम बनाते हैं और उसको खुद चलाते हैं। उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, मैं थोड़ा बात करूंगा तो आधा घंटा और हो जाएगा इंशाल्लाह। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट यूजेस साइंटिफिक मेथड, प्रोसेसेस, एल्गोरिदम्स एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज and insights from many structured and unstructured data. Data science is related to data mining, machine learning and big data. डेटा साइंस जो है ना बेसिकली वो डेटा एनालिसिस नहीं है, वो नंबर्स की एनालिसिस नहीं है। डेटा साइंस के अंदर सारी एनालिसिस होती है जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट भी हैं। ये एक ना डेफिनेशन थी, हम आगे इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। डेटा साइंस की स्किल्स के अंदर अगर आपको डेटा साइंस की स्किल अक्वायर करनी है तो ये 3 कॉम्पिटेंसीज अक्वायर करनी पड़ेगी, कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डोमेन नॉलेज, मैथमेटिक्स और साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और मैथमेटिक्स, ये तब तीनों कंबाइन होते हैं तो ये डेटा साइंस बनता है। आगे जाके इस पर बात करते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है? इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर बॉट्स। बॉट्स का नाम सुना है आपने? आपकी कौन कौन सी कंपनी में आप लोग बॉट्स पे रिसर्च कर रहे हो? आरपीएस पे? कौन सी कंपनी आप बॉट्स पे रिसर्च? आप आरपीएस पे काम कर रहे हैं आप लोग? मुझे टपाल के सीएफओ का फोन आया, उसने मुझे बोला यार बॉट्स इंप्लीमेंट करने क्या करूं। है तो बॉट्स पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंस के फंक्शंस ऑटोमेट हो जाएंगे। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर बॉट्स टू ऑटोमेट हाईली रिपीटेटिव रूटीन टास्क प्रोसेसेस नॉर्मली परफॉर्म बाय नॉलेज वर्कर। जो रूटीन रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना वो सारे ऑटोमेट करने के लिए बात हम ये है बॉट्स थ्रू सॉफ्टवेयर। इनवॉइस खुद जनरेट हो जाएगी, पेमेंट खुद हो जाएगी, परचेज ऑर्डर खुद आ जाएगा, जीआरएन खुद हो जाएगी, 3 वे मैचिंग खुद हो जाएगी, इनवॉइस को वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। बेसिकली जो इंटेलिजेंस है ना हमारी, वो इंटेलिजेंस मशीन के अंदर डालना कि वो तमाम फैसले कर सके, वो तमाम थिंकिंग अप्लाई कर सके, ये एआई की साइंस है।
यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। मुझे एक से 2 मिनट आप देंगे अहमद रजा भाई बस। We are planning to launch a series of seminar on the future of finance related to these technologies. We are just aiming for that. We have not finally decided about anything. If we plan to launch this series of seminar, how many of you would be interested to attend? नहीं, ये टेक्नोलॉजीज होंगी। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया इन्होंने, क्योंकि इसकी अगर हम लोग टेक्नोलॉजिकली इसको हम लोग देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी तो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती है। अहमद रजा भाई से मैं कंसल्ट करके ना फिर देन वी विल डिसाइड सम फ्रेमवर्क। आखिरी सवाल, एक मिनट की वीडियो, देन इट इज क्लोज। यह देखें, इसका एक बहुत बड़ा जवाब है। कितनी, एक तो स्किल सीखनी है, हाँ सीखनी है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर देन यू हैव टू एक्वायर द स्किल। सवाल यह है कि स्किल सीखनी कितनी है। क्या प्रोग्रामर बनना है, कोडर बनना है या नहीं बनना, वो डिपेंड करता है कि आप करियर के किस स्टेज पर हो। अगर आप करियर के अपने अर्ली स्टेज पर हो तो फिर आपको कोडिंग आनी चाहिए। वन मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ एक मिनट की बात कर रहा हूँ। थैंक यू, एक मिनट की नोट, कुछ नोट भी नहीं खुदा। एक मिनट की वीडियो। Thank you very much. Big round of applause to our speaker. I hope it was a very insightful session for all of you, and it has made your mind, given a new dimension to it, and make you thought that what we are doing right now, is it the one thing that we want to do, or is it something else that we want to do? And to give you more positivity in this session, we have one of the leading businessmen with us, Karachi Snack Association Chairman and the Director of the Tasmania Foundation. I would like to call upon Mr. Taslim Raza to come and